Good morning. I am Anil Ojha and today I am going to teach you history for class 10th chapter 3rd Nationalism in India part 3rd A. I have discussed about the Khilafat movement and non-cooperation movement, and today I am going to discuss about the towards civil disobedience. In February 1922, Gandhiji decided to withdraw non-cooperation movement. There were three reasons about withdrawing the movement of non-cooperation. First, we can say the violence in Chauri Chaura. In Chauri Chaura violence, we can say that some satyagrahis were attacked on police thana, and Gandhiji did not like it. So Mahatma Gandhi became very sad. Second reason we can say need to train satyagrahis. Means Gandhiji decided or wanted to train satyagrahis because they often became aggravative mood. They often became in aggressive mood, and they took violence. So uh, satyagrahis should be prepared in proper way, in proper training. Third things, we can say some other leaders like Motilal Nehru, Chitranjan Das, they did not take interest in non-cooperation movement. They wanted to take uh, part in election, participate in election. They considered that if we took participate in election, we could improve the system, because British government was non-democratic government, and by the act of 1919 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत इलेक्शन लड़ सकते थे. सो दे डिड नॉट टेक इंटरेस्ट. ओके, नेक्स्ट स्वराज पार्टी. चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू. Chitranjan Das and Motilal Nehru formed a party which name was Swaraj Party, and they wanted to participate in election, but some younger leader like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose was very aggressive and against this decision. They did not want to take participation. They wanted to take a step to struggle and to take full freedom, means Purna Swaraj. And they were radical mass agitation, means वो mass agitation के बल पे हम उसको ले सकते हैं. ओके, जो विड्रॉ किया गया उसके उस समय जो गांधी जी बैठने वाले तो थे नहीं. उनके विचार आया कि भाई और इस देश को किस तरह से आज़ादी की जाए. इट इज़ द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया. तो उस समय की परिस्थितियों का उन्होंने अध्ययन किया, और वो सिचुएशन क्या थी. तो टू फैक्टर्स अगेंस्ट इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 20. फर्स्ट फैक्टर था द ग्रेट डिप्रेशन, मीन्स आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था. थ्रू ऑल द वर्ड्स सामान महंगे हो रहे थे, एंड फूड किसान परेशान थे, और मार्केट बिल्कुल नष्ट होता जा रहा था. एंड पीजेंट वांटेड टू सेल देयर ग्रेन्स आर अदर मटेरियल्स. दे वर नॉट एबल टू सेल द थिंग्स. सो कंडीशन ऑफ पीजेंट्स बिकेम वेरी वर्स्ट. उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई. अब सेकेंड थिंग्स है द साइमन कमीशन. टोरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश sent one commission, which name was the Simon Commission.
The Simon Commission was formed in November 1927 and Simon Commission arrived India in 1928. The problem was of the Simon Commission that there was no any members of India. All the 7 members was related to British Parliament. और जब एक भी मेंबर उसके नहीं थे, सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, तो श्योरली द इंडियन ग्रीटेड द कमीशन विद द स्लोगन गो बैक साइमन, गो बैक साइमन के नारे लगे. एंड ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, they opposed the commissions and lathi charge was held. More leaders were arrested. Lathi charge was held at Lahore and Lala Lajpat Rai was injured during the oppose of this commission. And after some days he was died. जब इस तरह की बात हुई और इसमें जो कमीशन की बात आई, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा तब सारी परिस्थितियों को देखते हुए लॉर्ड इरविन ने एक एजेंडा लाए, और वह एजेंडा क्या था? डोमिनियन स्टेट का. सम मॉडरेट एंड लिबरल लीडर became very happy for this agenda, dominion state, but our younger leader Pandit Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they did not happy with this agenda. They wanted to take कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज. वो पूर्ण स्वराज की बात करते थे ये नेता लोग. उसके बाद लाहौर में इन लाहौर सेशन द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर्मलाइज्ड ए फार्मूला ऑफ पूर्ण स्वराज इन दिसंबर 1929 एंड 26 January 1930 he declared पूर्ण स्वराज. उन्होंने पूर्ण स्वराज को नारा दिया और स्वीकार भी किया, और वहाँ पे फिर उन लोगों ने एक कसम खाई, प्रतिज्ञा की, टू टेक ए प्लेस फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और तब तक हम सांस चैन की नहीं लेंगे जब तक कि भारत को पूर्ण आज़ाद ना करा दें. इस तरह की बातें आई. तो इसी स्थिति में एक जब ये पॉइंट चल रहा था, तो इसके दौरान गांधी जी के दिमाग में आया कि क्या किया जाए. तो उन्होंने एक आंदोलन चलाने की बात की, द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस. यह हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें क्या हुआ कि ऑन जनवरी 1930, तो जो इसके जनवरी 1930 के पहले की जो सिचुएशन थी, गांधी जी ऑब्जर्व्ड ऑल द सिचुएशंस, और वो कुछ करना चाहते थे कि भाई इस तरीके से काम नहीं होगा, पूर्ण स्वराज से भी लोग पब्लिक उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, किस तरह से मास को हम जगाएं ताकि सब लोग सक्रिय हों भारत की आज़ादी में. एंड वी कुड टेक ए प्रॉपर डिसीजन दैट वी कुड वीन ऑफ आवर एम, अपने उद्देश्यों में सफल हो सके. इसके लिए उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखा. 11 डिमांड्स जो लॉर्ड इरविन थे, वायसराय ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी पुट 11 डिमांड्स बिफोर हिम. उन डिमांड में क्या क्या डिमांड थी? सम डिमांड्स ऑफ जनरल इंटरेस्टिंग पीपल्स, बट अदर्स आर स्पेशल डिमांड, लाइक पॉलिटिकल प्रिजन शुड बी रिलीज्ड, राजनीतिक कैदियों को आज़ाद करा दिया जाए. और इस तरह की बातें हुई. तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर हमें आप एक अल्टीमेटम उन्होंने दिया, जब उस तरह की डिमांड नहीं सुना गया
क्योंकि लॉर्ड इरविन बहुत इंटरेस्ट नहीं लिए उनके डिमांड पे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम आपको 11 मार्च के लिए एक अल्टीमेटम देते हैं, इफ़ यू डिड नॉट एग्री विद आवर डिमांड वी कुड टेक ए स्टेप अगेंस्ट द ब्रिटिशर और ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी, महात्मा गांधी की बातों को ब्रिटिश सरकार ने नहीं सुना। तब स्थिति हुई कि इन्होंने कुछ एक ऐसा मुद्दा उठाने के बारे में सोचा दैट इफ एजेंडा वुड इन्फ्लुएंस टू मोर एंड मोर पीपल वी कुड यूनाइट होल द नेशंस, ताकि हम देश को संगठित कर सकें। तो ही टुक वेरी वार्मफुल एजेंडा ऑफ साल्ट, उन्होंने नमक को चुना। और नमक आंदोलन जो है साल्ट मार्च करने की बात उन्होंने सोची और अपने 78 वॉलेंटियर्स को ले लिया और 24 डेज तक उन्होंने 240 माइल्स की यात्रा की। ही वेंट फ्रॉम साबरमती टू डांडी इन 24 डेज। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे पहुँचने के बाद ऑन 6 अप्रैल ही वायलेटेड द लॉ एंड मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। उस पानी से उन्होंने उसको नमक बनाया समुद्र से, समुद्र के गर्म पानी से, और उस कानून को तोड़ा। और इसमें क्या हुआ फिर कि यह उनका कानून तोड़ दिया गया। अब यहाँ मैटर हो रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट and this is the civil disobedience. तो firstly we can say that non-cooperation movement was against the colonial law. वहाँ पे बहुत छोटे छोटे जैसे कि चंपारण के में अगेंस्ट द इन चंपारण गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ए वेरी लोकल एजेंडा, और कॉलोनियल रूल को तोड़ने के लिए इन्होंने लगाया था। लेकिन जो सिविल डिसओबीडियंस था ये बहुत ही बृहद स्तर पे था और उससे भी भयानक था। इसमें हुआ क्या कि जो गफ्फार खान थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, ही वाज अरेस्टेड इन 1930। ही वाज ए डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वो शिष्य थे। उन्होंने अपने तरीके से, गांधीवादी तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। और 1 महीने के बाद हुआ क्या कि महात्मा गांधी वाज आल्सो अरेस्टेड। महात्मा गांधी के अरेस्ट होने से पहले महिलाएं भी चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा ली। एंड आल्सो द लीकर शॉप वेयर पिकेटेड। और इसके बाद फॉरेन क्लोथ्स वेयर बॉयकॉटेड। जब गांधी जी को, व्हेन गांधी जी वाज अरेस्टेड, देन इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे सोलापुर के, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ सोलापुर अटैक्ड ऑन ब्रिटिश प्रॉपर्टी लाइक ऑन रेलवे, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स एंड पुलिस स्टेशंस, ताकि तमाम तरह की घटनाएं हुई। और गांधी जी आल्सो सजेस्टेड टू वुमेन for not send their husband or their male persons to purchase things related to foreign। विदेशी कोई भी वस्तु न खरीदें, महिलाओं से भी गांधी जी ने आह्वान किया। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत उपद्रव मचा, और गांधी जी जब अरेस्ट हो गए तो इस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट arrested many leaders one by one. Nearly 1 lakh people were arrested during this moment. इस तरह की बातें हुई। और जब ये बहुत ज़्यादा हल्ला और हिंसा फैलना शुरू हो गई तो गांधी जी ने क्या किया, ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने अपना मूवमेंट बंद कर दिया। और फिर उन्होंने एक लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट किया ऑन 5 मार्च 1931 को उन्होंने पैक्ट किया। उस पैक्ट में क्या था
तो उन्होंने बोला कि इस पैक्ट में ये था कि ही वांटेड टू पैक्ट एंड ही टुक ए कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। उन्होंने डिसाइड किया कि लंदन में जाएंगे और पॉलिटिकल जो प्रिजन्स हैं, राजनीतिक कैदी, उनको भी रिलीज़ किया जाए। तो ये बात की गई, फिर लंदन भी गए। आई वुड लाइक टू से अबाउट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देयर were 3 round table conference. In first round table conference, the member of Congress did not go to London, but in second round conference, Mahatma Gandhi went to London to solve the problem. सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गए, जो राउंड टेबल हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वहाँ से लौट कर आए तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कुछ भी खाली हाथ आया हूँ, कोई समझौता नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनी एग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट ऑल द सिचुएशन हैड बीन चेंज्ड व्हेन ही रिटर्न्ड टू इंडिया। जवाहरलाल नेहरू Abdul Ghaffar Khan were arrested and he was in jail at that time. Many ban had been imposed against the meeting. No one could held the meeting against the Britisher. इस तरह की बातें हुई, बहुत दुखी हुए महात्मा गांधी। ओवर ऑल आफ्टर 1 ईयर उन्होंने सोचा कि फिर इसको हम कंटिन्यू करें, और उन्होंने कंटिन्यू किया। बट बाय 1934 दिस मोमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, इट्स पॉपुलरिटी। तब उन्होंने 1934 में इसे बंद कर दिया। और इसी दौरान जब गांधी जी ने यह भी देखा कि कांग्रेस को भी इलीगल घोषित कर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, देन 1934 में इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस को विड्रा कर लिया। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट टॉपिक, एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल start about how participants saw the movement. And if you feel any problems, any questions, you give comment in comment box. I will satisfy you, and subscribe my channel. Thank you.